تو میں نے کہا یہ جو ہے نا کرنے سے ذرا میرے کھولے واک کریں گے تو۔ ناظرین کرام، آج 16 مئی ہے، سن 2021 ہے، صبح کے 6 بجنے کو ہیں۔ ہم پارک میں بہاولپور شاہدرہ پارک میں واک کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ پارک کمیٹی کے پریزیڈنٹ جناب سید لئیق احمد صاحب اور جناب صادق شاہ صاحب، اور یہ بزرگ بھی یہ ایسٹرن دروازے پر بہاولپور شاہدرہ پارک کے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ آج یہ اسے کل لاک نہیں تھا، اس سے پہلے بھی لاک نہیں تھا، آج یہ نئی دیکھیں آپ یہ زنجیر لگائی گئی ہے تو اسے بند کیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ اوپر سے پی ایچ اے کی انتظامیہ نے یہ نوٹس لیتے ہوئے کہ یہاں پر لوگ واک کے لیے آتے ہیں اور ڈسٹنس کے ساتھ وہ واک آتے ہی بہت کم ہیں، کل جو تھے 5-6 آدمی تھے صرف، تو وہ پھر یہی تھے جو اب آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں، یہ ایک فاصلے کے ساتھ دیکھیں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو یہ پھر ان کے نوٹس میں شاید یہ بات آئی کہ لوگ واک کے لیے آتے ہیں، تو یہ اسٹرکٹلی انہوں نے پھر یہ بند کر دیا۔ تو اس کے بارے میں ناظرین کرام دو تھاٹس ہیں، دو تھاٹس۔ ایک تھاٹ تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کووڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ آکسیجن لی جائے۔ چنانچہ انڈیا میں جو ہے کووڈ بہت زیادہ آیا شدید حالت میں، تو حکومت پاکستان نے یہ مخالفت ہونے کے باوجود انسانیت کا ثبوت دیتے ہوئے اس کے نام پر بہت سے ٹینک بھجوائے، جو کہ ٹینکرز بھجوائے جو کہ آکسیجن کے ہیں۔ تو یہ جو پارکس ہوتے ہیں یہ بھی در حقیقت یہ آکسیجن پیدا کرنے والی قدرتی فیکٹری ہیں۔ تو اس کے بارے میں ایک کنسیپٹ تو یہ ہے کہ لوگوں کو یہاں پر واک کو نہیں روکا جانا چاہیے، لیکن ایک سامراجی خیال بھی ہے۔ وہ سامراجی خیال یہ ہے کہ واک ان کو بھی بند کر دیا جائے۔ اب یہ جس علاقے میں بہاولپور شاہدرہ پارک ہے یہ محنت کشوں کا علاقہ ہے، یہاں پر 15 ضربے 25 فٹ کے مکانات ہیں، جس میں بڑا کثیر کنبے رہتے ہیں، ایک ایک کمرے میں 3-3 4-4 ڈربے کی طرح، جیسے جانوروں کے پرندوں کے ڈربے ہوتے ہیں ایسے رہتے ہیں، اور وہاں پہ آکسیجن کی بہت کمی ہوتی ہے۔ تو وہ خواتین اور مرد جو ہیں وہ یہ اس پارک میں آتے تھے، پھر یہ کووڈ کی وجہ سے یہ پہلے کم ہمارے ہاں جو ہے وہ اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے لوگ کم ہی آتے ہیں، تو لیکن جو آتے تھے ان کے لیے بھی یہ پھر انہوں نے کووڈ کا بہانہ بنا کر یہ ایک پی ایچ اے کی میٹنگ کی ہے۔ تو بات تو یہ ہے کہ وہ ایک بڑی بات مشہور ہے کہ قانون اندھا ہوتا ہے، لیکن قانون کو نافذ کرنے والوں کی آنکھیں ہونی چاہیے۔ تو ہمارے ہاں جو حکمران ہیں یہ آنکھیں نہیں رکھتے، یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آقا ہیں اور عوام جو ہیں یہ غلام ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ یہ سوچا، آپ دیکھیں ایک انڈین ریسرچر نوجوان کی ویڈیو دیکھنے میں، خاتون کی یہ ویڈیو دیکھنے میں سامنے آئی، جس میں اس نے تحقیق سے یہ بتایا کہ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ جو تھی، جو 20 سال پہلے جو تیار کی گئی تھی، کہ وہ اس کے ویب سائٹ پر اب بھی موجود ہے، کہ وہ اس نے اسٹڈی کی، اس میں بتایا گیا کہ دنیا کی آبادی بہت بڑھ رہی ہے، تو انٹرنیشنلی کوئی ایسا کیا جائے کہ اس کو آبادی کو کم کیا جائے۔ تو اس حوالے سے اس کا کلیم یہ ہے کہ یہ کووڈ-19 جو ہے یہ بھی انہوں نے اپنے ہی ایک پروگرام کے مطابق اس کو وہ کیا ہے۔ ویسے یہ بات تو بڑی مشہور رہی اب تک کہ میڈیسنز بنانے والی کمپنیاں خود ہی بیماریاں پیدا کرتی رہی ہیں تاکہ ان کی زیادہ سے زیادہ میڈیسنز فروخت ہوں۔ تو یہ بھی کوئی وہ اس کا کہنا یہی تھا کہ یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے، اور اس میں ایک عالمی حکومت کے تصور کو بھی ابھارا گیا ہے۔ تو اس عالمی تصور کو جو ابھارا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ اوپر سے ڈائریکشنز آ جاتی ہیں، کچھ انہوں نے فنڈنگ بھی کی ہے، اور پھر ہمارے ہاں جو حکمران ہیں وہ ان کے بہت زیادہ کنٹرول میں ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ کوشش تو اب
देखने की तो बात ये है कि इन दोनों के बारे में कंपेयर कर लिया जाए कि लोगों को अवेयरनेस दें कि वो डिस्टेंस उससे रहें। अब देखें एक ये बात भी सामने आ गई अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडन के हवाले से कि उसने एक बात की कि जो जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है और उनके लिए मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं। अब मास्क के बारे में भी दो कंसेप्ट पाए जाते हैं। एक कंसेप्ट तो ये पाया जाता है कि इससे कोविड के जो जरासूमा है उससे बचा जाता है, तो एक ये कि मुंतकिल नहीं होते दूसरे। लेकिन एक ये भी तो है कि इससे जो सांस लेने में जो रुकावट पैदा होती है तो वो 25-30% जो है वो इनहेल करने में, हवा इनहेल करने में, सांस लेने में वो रुकावट होती है। तो उससे 25% सेहत जो है ये इसका मुतासर होना बहुत ज़रूरी है। क्यों जनाब लईक साहब, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जनाब, बाद में मैं बात करूंगा। सबसे पहले मुझे इस इंतज़ामिया पर जो है ना अफसोस आता है कि भाई अगर इन्होंने पाबंदी लगानी है तो भाई नोटिस लगाओ, नोटिस लगाएं ताकि लोगों को मालूम हो कि ये पाबंदी है, लोग ना आए। ना पाबंदी लगाते हैं और ना लोगों को ऐलान करके बताते हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि भाई ये हुकूमत का फ़ैसला है या इनका अपना ज़ाती फ़ैसला है? अच्छा, ये आप प्रेसिडेंट हैं और ये आवाम की बड़ी भरपूर तायीद आपको हासिल है, ये कभी इंतज़ामिया ने आपसे कोई राब्ता किया? कभी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। आपने जो प्रपोजल दी थी, बहुत शानदार प्रपोजल थी कि शजरकारी के हवाले से कि यहाँ पर कोई उसके ऊपर भी कोई रिप्लाई आया आपको? नहीं, कोई रिप्लाई नहीं आया, ना इन्होंने कोई तकलीफ गवारा। यानी वो शजरकारी के बारे में आपकी प्रपोजल थी और इमरान खान की बहुत वो है कि बिलियन और ट्रिलियन ऑफ ट्रीज के बारे में कि वो तो इनको बहुत नोटिस लेना चाहिए था। जनाब, हर अच्छी तजवीज़ इन्होंने कसम खाई हुई है कि हर अच्छी तजवीज़ को हमने उस पर अमल नहीं करना। यानी ये आवाम को समझते, अवाम दुश्मन लोग हैं, अवाम दुश्मन लोग हैं। ये वही बरतानवी दौर से भी ज़्यादा कॉलोनियल जो है, ये ब्यूरोक्रेटिक सेटअप स्ट्रॉन्ग हुआ है अंग्रेज़ों के। ये एक मिनट मुझे बात करने दें। ये अंग्रेज़ों के गुलाम इब्ने गुलाम वो नस्ल इनकी जो पैदा कर गया है, वो नस्ल हम पर मुसल्लत है और अभी जो पता नहीं हमें मुस्तक़बिल करीब में इनसे निजात का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। तो ये तो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप तो इमरान खान के ज़माने में और भी मजबूत हो गया है। ये क्या बात हुई? ये कब कमज़ोर हुआ था, मुझे ये बताएं। नहीं, अब तो मज़ीद मजबूत हो गया। ना, मज़ीद मजबूत हो गया। आप मुझे ये बताएं कि कब कमज़ोर हुआ था? आज तक ये तगड़े से तगड़े होते चले जा रहे हैं, कमज़ोर नहीं हुए। नहीं, भुट्टो साहब के ज़माने में तो कुछ हुआ था। भुट्टो साहब ने क्या किया था? लोगों को निकाल दिया था, उसके बाद क्या हुआ था? ये कमज़ोर बढ़ गए थे। नहीं, ब्यूरोक्रेसी को थोड़ी सी कंट्रोल, ब्यूरोक्रेसी को निकाल के कमज़ोर करने के बाद, यानी ब्यूरोक्रेसी आवाम को कुछ मानने तो लगी थी। ये तो आप माने, ये ब्यूरोक्रेसी इनकलाब तो आया था, ये तो माने आप। ये जमात इस्लामी के हवाले से आप ना सोचे ना। ये ब्यूरोक्रेसी थी जिसने भुट्टो साहब को वो किक आउट कर दिया था। ये ब्यूरोक्रेसी थी। हाँ, कि भुट्टो को भी किक आउट किया और जियाउल हक को ले आए। ये यानी ये कंट्रोल मेरा ख्याल वाशिंगटन से ही होते हैं। और ये वाशिंगटन से कंट्रोल होते हैं। जियाउल हक को लेकर आए तो जियाउल हक को निकाल भी दिया उन्होंने। जनाब क्या हाल है? ये नायब सदर हैं हमारे जमील साहब, ये पार्क कमेटी के, और ये अव्वल नायब सदर हैं जनाब सादिक शाह साहब। SOP से तो ये जो बताया गया था मीडिया में कि जहाँ पर वॉकिंग ट्रैक या रनिंग ट्रैक होगा उस जगह को बंद नहीं किया जाएगा, ये वाज़े तौर पर बयान था, क्योंकि वहाँ पर फासले के तहत लोग जो है वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। तो जिस पार्क के सामने हम खड़े हैं वहाँ पर बहुत अच्छा वॉकिंग ट्रैक है और रनिंग ट्रैक है, और कानून के मुताबिक उस ट्रैक को खोलना था। लेकिन ये पार्क के जो मुलाजमीन हैं, मैं समझता हूँ कि ये उनका फ़ैसला है 100%, वो आराम से सो रहे हैं। ये डायरेक्टर जनरल PHA का फैसला नहीं है? बिल्कुल। क्या उसको बिल्कुल कंट्रोल नहीं है यहाँ पर शाहजी? नहीं, उन्हीं का है, उन्हीं का, ये ऊपर से है यहाँ के। ये देखे, ये नई जंजीर लगाई गई, ये बिल्कुल नहीं, ये कल ही खरीदी गई हो जाती, ये लगाई गई और ये ऊपर से ये डायरेक्शन है। मैं आपकी इस बात मैंने एक डायरेक्शन ऐसी है, अगर ऐसी डायरेक्शन आई है तो एक डायरेक्शन ये भी होते कि थोड़ी सी तकलीफ करके नोटिस लगा देते। नहीं, नोटिस तो लगा देते, वो तो ठीक है, लेकिन ये तो बुनियादी तौर पर ही गलत है। जैसे कि सादिक शाह साहब कह रहे हैं कि इसके बारे में बताया गया है कि ये जो वॉकिंग ट्रैक्स होंगे
उनको बंद नहीं किया जाएगा। ये कानून तो ये तो वैसे भी लॉजिकली भी बात है, कानूनी काम इन्होंने किया हुआ है, यहाँ लॉक किया हुआ है, वॉकिंग ट्रैक को बंद लेकिन किया हुआ है। हमारे यहाँ तो ये है कि कानून तो अंधा होता है, तो ये नाफज करने वाले कानून भी अंधा है उससे और भी ये ज्यादा भी अंधे। ये उससे भी ज्यादा अंधे होते हैं। ये कानून अंधा है और ये खुद अंधे हैं। ये खुद अंधे, नाफज करने वाले भी अंधे हैं कि ये देखना कि ये लोगों को तो ऑक्सीजन की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है और ये ऑक्सीजन से लोगों को रोक रहे हैं। और ये जो है तो ये यहाँ पर ये वैसे तो कोविड की वजह से कम ही लोग आते थे, तो पहले भी अवेयरनेस को थोड़ी सी हुई थी, कुछ हुआ थी। सिलसिला कायम है, लॉकडाउन की वजह से चौकीदार साहब कहते हैं कि हमने बंद कर दिया गया। जी, लॉकडाउन की वजह से ये कहते हैं कि ऊपर से हदायत आई है, ये कहते हैं कि हमें ऊपर से हदायत, अफसरों की हदायत आई हैं कि लोगों को ऑक्सीजन लेने से रोका जाए। रोजे को मैं जब यहाँ आया हूँ तो मेरे अकेले के लिए उन्होंने शहरी के बाद नमाज के बाद खोला। मैंने कहा मुझे तकलीफ़ है, पैरों में मुझे हीट हो रही है, तो मुझे ज़्यादा मुझे थोड़ा सा घास में फिरने दो। उस वक्त मुझे थोड़ी सी सिर्फ मोहलत दी थी। फिर उन्होंने मुझको ख़त कहा कि खुद जब आना हो तो थोड़े तौर पे अपने तौर पे आ जाए करें 5-10 मिनट के लिए, तो उसके बाद फिर किसी और को ना कहें कि आप खुद आएँ, कोई और आए। इसलिए मैं ही कोशिश करता था, एक आध दफ़ा आया हूँ, उसके बाद फिर मुझे आने की ज़रूरत है। तो ये अब बात ये है कि इमरान खान हुकूमत अगर जिंदा है अगर जिंदा है, वो बनी गाला तक महदूद नहीं है, तो उसको इसका नोटिस लेना चाहिए कि ये इमरान को छोड़ें, उसका जो वसीम अकरम है गुलजार साहब, वो भी तो एक बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला ने नहीं, वसीम अख्तर तो उसका था ही नहीं, वो तो ये जो बुज़दार है ये तो मुस्लिम लीग काफ का था, ये तो मुस्लिम लीग नून का था, ये तो एक सरदार था, उसको बस वो समझते हुए उसने अडॉप्ट कर लिया। वो उसका क्या ताल्लुक था पीटीआई से? अब आप जो है ना ज्यादा कर रहे हैं। अगर ये बुज़दार साहब का था या मुस्लिम लीग नून का था, तो बाकी जो लोग हैं उनको क्यों नाम, उनके नाम क्यों नहीं लेते? कोई पीपल पार्टी से आया है, कोई काफ लीग से आया है, बहुत सारे। तो ये तसलसल है, उन्हीं हुकूमतों का तसलसल है। जागीरदार लोग हैं ये, जागीरदार लोग, अपर क्लास है, अशराफिया है, अशराफिया है। और वो ये शुगर माफिया है, खुद ये हुकूमत इतराफ़ शुगर किया माफिया है। कर रहा है, शुगर इमरान माफिया। खान ने ये खुद इतराफ़ किया है कि एक छोटा सा जजीरा जो है वो अशराफिया का है और वो बड़े खुशहाल है पाकिस्तान में। बाकी पूरा समंदर जो है वो गरीबों का है, जलील लोगों का है, ख्वार लोगों का है, रजील लोगों का है, रजील लोगों का है, काम करने वालों का है, मेहनत कश लोग हैं। और छोटे से जजीरे पे जो है ये बात तो उसने सही, विराजमान, ये खुद बात तो इतराफ़ उसने किया है। सही, बात तो बात उसकी जो है वो जहन में रखनी चाहिए, जहन नशीन करनी चाहिए कि ये जो जजीरा है जिस पर वो हुक्मरान तबका और ब्यूरोक्रेट्स और आपकी जो आर्मी के बड़े अफसरान हैं वो वहाँ मौजूद हैं, बाकी जितना भी समंदर पूरे का पूरा वो उन मेहनत कशों का है। और वो जो है इस हालत में कि उनकी ना कोई सुनता है, ना उनके पास कोई फैसिलिटीज़ हैं, उनकी मेहनत को लूटा जाता है, बिल्कुल उनको चीनी महंगी फरोख्त करके लूटा जाता है, बिल्कुल। और हुकूमत की मशीनरी जो है वो लूटने वालों का साथ देती है। और सुने, कतारों में चीनी के लिए लगा दिए, अब वो बेचारे कतार चीनी के हुसूल के लिए उनकी कोशिशें हैं कि भाई हमें चीनी किसी तरह मिल जाए। बाकी जो है वो सारे इशू, सारे मसले वो पीछे चले गए। हुकूमत अब महंगाई तो हर चीज़ की महंगाई, आप अभी मेडिसिन भी देख लें कि वो मेडिसिन जो मैं पिछले चीनी महीने मैंने लाया था इलामती तौर पर वो नाम उससे लिया अब है। 10 रुपये महंगी हो हर गई। चीज़ महंगी है जनाब ड्रॉप अली, पे, हर चीज़ महंगी है। कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि मैंने सिर्फ चीनी का नाम लिया है, वो तो हर चीज़ महंगी है। हर चीज़ महंगी है। और उस पर लगा दिया है कि आप महंगाई के खिलाफ चलते रहें, बोलते रहें, और हम जो है ना अपना काम करते रहें, लूट मार। नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो कहता है कीमतें मैं वापस पुरानी उस पर लाऊंगा। इसका बाप भी नहीं कर सकता। बाप भी नहीं, ये तो सही आप बात है। आप ये सख्त देखिए बात ना, है। वो हर जुबान ज़द-ए-आम है बात के, जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो चीज़ और महंगी हो और जाती है। महंगी हो जाती है। अभी आप लेटेस्ट इन्होंने कहा कि हम मुर्गी को भी इसका भी नोटिस लेते हैं। तो आप बताएं फिर मुर्गी कहाँ चली गई है? क्या भाव 500 रुपये हो सर गया वो कराची कराची में तो 500 है, यहाँ पर 460 रुपये भावलपुर में है। रिकॉर्ड रेट, ये रिकॉर्ड रेट है। आज तक पाकिस्तान में हमने इतनी महंगी मुर्गी नहीं खाई, बल्कि इस दफ़ा तो हम खाई भी नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि आम आदमी नहीं ले सकता मुर्गी।
तो ये फिर और गोश्त की पोल्ट्री माफिया ने फिर खूब मुनाफा कमाया। खूब मुनाफा, वो इनके हाथ नहीं आएंगे, जैसे चीनी वाले इनके हाथ नहीं आए ना, वो भी इनके हाथ नहीं आएंगे। नहीं, वो तो खुद हुकूमत कर रहे हैं ना जी, वो तो कंट्रोल, हुकूमती मशीनरी कंट्रोल में है, परचेजिंग पावर इनके पास है, ये उनको हुकूमत चलाने वालों को ये खरीद लेते हैं। बहुत जुल्म है जी इस मुल्क के ये साथ। सर मिसमैनेजमेंट है। आप अगर मेडिकल ग्राउंड में जाएं, हॉस्पिटल्स में जाएं, तो शहबाज शरीफ ने जो किया था, जो शहबाज शरीफ ने फैसिलिटीज़ दी थी, वो भी अब अवेलेबल नहीं है। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं, मदीने जैसी रियासत बनाने वालों ने आप अंदाज़ा लगाएं कि वो जो पिछली हुकूमत जो बना के गई थी प्लान्स और सारा कुछ करके गई है अवाम के लिए, आज अवाम को वो भी मुहैया नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये कंपैरेटिवली ये हुकूमत जो है इससे पहले के हुक्मरान ज़्यादा बेहतर थे। वो जो पहले लुटेरे थे वो मौजूदा हाल के लुटेरों से बेहतर थे। वो बेहतर थे। असल में ये भी तो वही है, कुछ ऐसी फैसिलिटीज जो है ना वो रखी थी। क्यों जी, ये भी तो वही फायदा उठाता था। वही है वो साबका हुक्मरानों की टीमों के आए हुए लोग। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये कहने पर हम मजबूर हो गए हैं कि वो लुटेरे इनसे ज्यादा अच्छे थे। उन्होंने 30 साल में वो जिस जगह पर आए थे, अब शुरू से फिर स्टार्ट होगा। अब वहाँ से स्क्रैच। लेकिन इन्होंने तो, इमरान खान ने तो जो है वो कर्जे लिए बगैर कर्जों के हुजूम में इजाफा कर दिया। ये मेरी एक बात जरा सुने। यानी इमरान और इमरान की हुकूमत और उसके कर्ता धर्ताओं के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि हम जैसे लोग जो इमरान के बहुत बड़े तरफदार थे, आज ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि इमरान से पहले वाले जो लुटेरे थे, जिनको हम गालियां निकाल कर हम थकते नहीं हैं, वो इनसे बेहतर। अच्छा, हम जो हैं इमरान खान के वोटर्स हैं। हम वो नहीं है कि हमने नून लीग को वोट दिए थे पहले और हमने इमरान खान को वोट दिए। अब वोट देने के बाद हमने जो जजमेंट की है, बिल्कुल यूँ समझें कि बैलेंस्ड ये जजमेंट है। किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं है, ना पीपल्स पार्टी के साथ, ना नून लीग के साथ, ना ही तहरीक इंसाफ के साथ, क्योंकि हमने तीनों को वोट दिए हैं। और हम ये समझते हैं कि 3 साल के बाद जो भी फैसिलिटीज़ थी या जो भी सर्विसेज हैं, उनमें कमी आई है, तनज़्ज़ुली आई है और उनमें बेहतरी नहीं आई। 3 साल में बेहतरी नहीं आई और हम कम से कम भी 15 साल पीछे जा चुके हैं इस हुकूमत की वजह से। लिहाजा मैं नहीं समझता कि हम आगे 10 साल भी तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। नहीं, ये तो एक तसलसल है पिछली ही हुकूमतों का, एक ही क्लास, जिन 3-4 पार्टियों का आपने जिक्र किया वही तो अब भी हुक्मरान है। आप देखें समीउल्लाह चौधरी जो था वो था नवाज शरीफ के साथ, उनका बहुत बड़ा इब्न मखतूम अपने आप को कहता था, लेकिन वो अब इब्न मखतूम जो है वो ये समीउल्लाह चौधरी जो है ये हमारे इलाके का ही है, हम इसे बचपन से जानते हैं। ये इतना निकम्मा था कि इसको जो है ना उन्होंने टिकट नहीं दिया था। तो अब ये समझ नहीं आती है, मेरे ख्याल में जहांगीर तरीन साहब की नवाजिश है कि समीउल्लाह चौधरी इतना निकम्मा इंसान था कि उन्होंने इसको टिकट कभी नहीं दिया। ये था सही उनके साथ, एक आध दफ़ा ये जीता है, पता नहीं किसी इलेक्शन में ये मुस्लिम लीग नून के टिकट से जीता और इसकी जीता, लेकिन बाद में फिर इसको कभी टिकट नहीं दिया। इसने भी इसको कभी टिकट नहीं मिला उसके बाद जो इलेक्शन हुए, एक दफ़ा इसको मिला। ये नहीं, आपकी मालूमात ये दुरुस्त नहीं है। ये इसको टिकट मिला था रहमान और मुस्लिम लीग नून के हवाले से और उसके ताबशलरी के मुकाबले में इसको दिया गया। बलीवर रहमान हमेशा पिछले 15 साल से, वसीम अख्तर जमात इस्लामी के MPA और बलीवर रहमान ने हर हुकूमत में डॉक्टर वसीम के बाद फिर ये एक बना, एक दफ़ा उससे पहले ये बना था। उसके बाद फिर इनकी मिसेज जो हैं वो इनाम के तौर पर इनके अपने इन्फ्लुएंस की वजह से शहबाज शरीफ के दौर में MPA बनाई गई नवाज शरीफ के उससे। तो ये तो एक बात वो है, लेकिन और मैं इसको शामिल भी जो है वो उन्हीं लोगों ने किया। तो यही वजह है कि अब फिर क्या ये हालात है हमारे। समीउल्लाह यहीं पर ये एक वो चलाते पार्क थे। कमेटी के जो चेयरमैन यहाँ पर मौजूद हैं और वो उनको कोई इतला नहीं है कि आज जो है पार्क बंद रहेगा। और पार्क कमेटी के जो मेंबर हैं, जो अवामी मेंबर हैं, जिनको अवामी तायद है और अवाम जो है उनके साथ कांटेक्ट रखती है, और अगर इनको इन्फॉर्मेशन कोई होती तो ये आम पब्लिक में इन्फॉर्मेशन देते, क्योंकि जितने भी वर्कर्स हैं जिनकी ड्यूटी है, जो तनख्वाहें लेते हैं, वो तो सो रहे हैं अंदर। हमें मालूम है कि वो अंदर जो है ना आराम कर रहे हैं, उन्हें कोई पता नहीं है।
कि बाहर चेयरमैन जो है वो पार्क कमेटी मौजूद हैं, नायब चेयरमैन मौजूद हैं और मेंबर्स कमेटी मौजूद हैं और उनको कोई इल्म नहीं है कि कौन किस वक्त पार्क खुलेगा, कब बंद होगा और क्या है। नहीं, असल में ये अवाम दुश्मन है, ये अवाम को तो तस्लीम ही नहीं करते ना। ये तो इमरान खान की हुकूमत जो है ये तो 100% ब्यूरोक्रेसी पर ही चल रही है। तो और ये जो आप कह रहे हैं कि सोए हुए अंदर मुलाजमीन यहाँ पे ये लॉक लगा के, तो वो तो ऊपर के हुक्म से ही मेरा ख्याल लगा। आप ये कह रहे हैं ना कि इमरान ब्यूरोक्रेसी पर चल रहा है। भाईजान, ब्यूरोक्रेसी जो है वो समझ गई है कि इमरान के इस टर्म के बाद इमरान के आने के चांसेस नहीं हैं। तो वो यूँ सोच रहे हैं कि जब उन्होंने ही आना है, नवाज शरीफ ने आना है, जरदारी ने आना है, तो फिर हम उनके लिए काम क्यों ना करें। ये तो दो साल के बाद तो चला जाएगा, वास्ता तो हमारा उनसे पड़ेगा, तो हम उनके वफादार क्यों ना रहें। ये अपना मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं, अपना मुस्तकबिल महफूज बना रहे। यही खूबसूरती है जमहूरियत की। जमहूरियत जो है ना, जो 5 साल के लिए आती है, तो पूरी दुनिया में यही फसाद होता है कि लोग जो है ना वो जब देख लेते हैं ब्यूरोक्रेट्स या जिनके हाथ में मुल्क होता है, पुलिस या फौज, या वो देख लेते हैं भाई इनका जो है ना पैमाना अब नीचे जा रहा है, लिहाजा वो उनके साथ उनके हुक्म पर अमल नहीं करते, बल्कि दूसरी उन लोगों के हुक्म पर अमल करते हैं और वो सरासर अवाम खुश होता है। नहीं, वो देखें हमारे यहाँ तो ये गुर्बत की लाइन में करोड़ 1.5 करोड़ अवाम का इजाफा हो गया है ये कोविड की वजह से। और उधर वो आप चीन को देखें कि उन्होंने गुर्बत से बिल्कुल ही निकाल लिया। यहाँ पर तो हमारी अपनी बनाई हुई गुर्बत है, वसाइल की कमी नहीं है, किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। आपने देखा कि जब बजट आना शुरू होता है तो 2 महीने पहले सरकार जो है वो हमारी आर्मी के हाथ में आ जाती है। जनरल चीफ ऑफ स्टाफ जो आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो जनाब बड़े बड़े वज़ीरों को और उनको हिलाना शुरू कर देते हैं और बजट अपनी मर्ज़ी का लेने के लिए वो सारे इक़दाम करते हैं जो कि अभी हो रहे हैं। जैसे ही बजट ख़त्म होगा हुकूमत फिर वापस इमरान खान के हाथ में। नहीं, पाकिस्तान को मजबूत फ़ौज की तो ज़रूरत है, वो तो हमें मेरा ख्याल है कि एतराज़ नहीं करना लेकिन चाहिए। ये मजबूत फ़ौज नहीं है, ये चोर फ़ौज है। ये जो है लूट रही है पूरे मुल्क को। अब आपने देखा कि बजट जैसे ही करीब आने लगा है, आप इंतहा पसंदाना बात ना करें, ऐसी बात ना करें आप। बजट जब करीब आने लगा है तो अब ये सारी हुकूमत जो है उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है बाजवा साहब ने। और उसके बाद क्या होगा, जैसे ही बजट हो जाएगा उनकी मर्जी का बजट बन जाएगा, उनको पैसा मिल जाएगा टैक्स पेयर्स। कोशिश कर रहा है अंदर जाने की, दिखाएं जरा ये कामयाब हो जाएगा। ये कोशिश कर रहा है अंदर ये जाने कुत्ता जो है ये पार्क में हम लोग तो नहीं जा सके। हाँ, हम लोग तो नहीं जा सके, ये कोशिश कर रहा है। देखिए कामयाब होता है ये नहीं होता। अब देखते हैं कि ये कामयाब होता है कि नहीं। अच्छा, नोटिस भी नहीं लगाते ना कि चलो नजर नहीं आ रहा है। बताओ नोटिस है, वही लोगों को मालूम हो ना। अब यहाँ आके बैठे हुए खड़े हुए, वो क्या कहते हैं, गार्ड भी नहीं बना, गार्ड बैठे वो थक गए, गार्ड भी नहीं है। उन्होंने कहा जी कि ऊपर से बंद किया गया है। ऊपर से नहीं, सामने कल से खुला हुआ था, आज कहाँ से बंद है। वो कहते हैं कि ऊपर से हदायत आ गई ना, वो कहते हैं ऊपर से, हमने पूछा था, वो कल ही भी कह रहे थे कि ऊपर से हमें बहुत स्ट्रिक्टली ऑर्डर है कि किसी बंदे को यहाँ पर ऑक्सीजन लेने के लिए ना आने दिया जाए, कि यहाँ पर ऑक्सीजन लेने ना आए। जब मैंने कहा था ना कि ब्यूरोक्रेसी नवाज लीग की जो है वो उनकी हिमायत करती है, उनकी फेवर में है, इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि जब शहबाज शरीफ साहब आते हैं पेशी के लिए या हमजा साहब आते हैं तो सिपाही जो है उनको सलूट करते हैं। क्यों करते हैं भाई? उन्हें पता है कि इन्होंने नहीं, ये सार असल में बात यह है कि ये रूलिंग क्लास है ना। हमजा शहबाज जो है ये रूलिंग क्लास में से है, और रूलिंग क्लास जो है खा वो अपोजिशन में हो, खा वो हुक्मरानी में डायरेक्ट हो, वो होती हुक्मरान ही है। ये तो आपस में इनकी हिस्से की लड़ाई है। सही साहब, ये जो डाका डलता है हर साल, आपको पता है कि जैसे ही बजट आता है जून में और उससे 2 महीने पहले अप्रैल से हुकूमत जो है वो किसी ब्यूरोक्रेट्स के पास नहीं होती। कोई भी, अभी आपने देखा कि वो बाजवा साहब सहाफ़ियों को मिल रहे हैं, उधर से बाजवा साहब शहबाज शरीफ को मिल रहे हैं, उधर से क्यू लीग को अपने साथ वो उनके वो ठीक है, वो हुक्मरानी के सेटअप में क्या मतलब है पाकिस्तान नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं। वैसे तो तमाम
तमाम हुकूमतों में हक़ाइक़ यही हैं, ख़ाह वो अमेरिका की हुकूमत ही क्यों न हो, वहाँ के जो आर्मी इंस्टीट्यूशन के जो हेड्स होते हैं वो उनके ख़ासे इन्फ्लुएंस में होते हैं। ये तो कोई ऐसी बात नहीं। ये जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनाब $2 बिलियन तो यहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान में गुमाश्ता हुक्मरानी का निज़ाम जारी है जो वाशिंगटन से कंट्रोल होता है रहा है, और अब भी उसमें से बहुत मुमकिन है खुदा करे कि वो सी पैक के हवाले से कुछ बैलेंस हुए हों, वरना यहाँ तो आप देखें कि वो जो मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली ने बहुत ठीक कहा था। उसने कहा जनरल ज़ैनी को अमेरिका से भेजा गया और उसने मुशर्रफ से मुलाकात की, सदर जनरल मुशर्रफ से, और सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मुझे बुलवा कर जो है वो मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया था। वो तो मौलाना फजल रहमान ने भी ये कहा कि मैं वज़ीर आज़म का वो इलेक्शन लड़ना चाहता था तो मुझे रोक दिया सदर मुशर्रफ ने। उसने कहा कि आप ना वो करें। मैंने कहा क्यों ना, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो इस पर मुशर्रफ ने ये कहा, सदर मुशर्रफ ने, कि अमेरिका नहीं चाहता कि आप बने। आप देखें हमीद गुल ने भी तो यही कहा, ISI के जो हेड थे, कि मुझे अमेरिका ने जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बनने दिया था। यानी जब उनको ज़रूरत थी अमेरिका को एक मजहबी फंडामेंटलिस्ट जनरल की, तो उसे ISI का डायरेक्टर जनरल बनवाया और ख़ूब इस्तेमाल किया जहाद अफ़गानिस्तान में। ये तो उनका है क्योंकि हुक्मरानी जो उनके कंट्रोल में है। आपने मुझे साहब देखा कि मुलाजमीन बेचारों की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई और उनको जो है पिछले 3 सालों से रगड़ा गया है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो क्यों ना मुखालिफ हो इस पॉलिटिकल हुकूमत के, उसको पता है कि हमें कोई मुफाद नहीं दिया गया। पॉलिटिकल तो नाम की हुकूमत और 40% जो है प्राइसेस बढ़ गए हैं हर चीज़ के, यहाँ तक कि दूध के भी और आम जो बच्चों की चीज़ें हैं उनके भी जो खुराक है 40% तक उसको बढ़ा दिया गया है और 10% भी तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई। लेकिन अगर आप बजट देखें, बजट पर आप नज़र डालें तो जो हमारी फ़ौज है उसका 40% बजट बढ़ाया गया है, उसको 40% बजट ज़्यादा दिया गया है। आप बहुत हम जो बात कर रहे हैं नहीं, फ़ौज के बारे में ना कहें। हम जो बात कर रहे हैं ये साबित हो सकती है। आप पता करें, पिछले साल जो है ना आर्मी का बजट जो है मुझे उम्मीद कर दिया गया था, उन्होंने खुद ही होल्ड कर लिया था कि ये हकीकत वैसे अगर देखा जाए तो आर्मी को इतने बजट ये हकीकत पर मबनी तो नहीं एक है। बड़ी सल्तनत है यहाँ पर सनती, उसमें फौजी फर्टिलाइजर है, कितनी बड़ी सल्तनत है। मैं ये कहता हूँ फौजियों ने कब्जा किया हुआ है, वो रिटायर्ड फौजियों ने कब्जा किया हुआ है और वो पीनट्स देते हैं टैक्स की, उसमें सारी जितनी भी खाद है, पूरे जरी जितने भी चीज़ें हैं वो फौज के अंडर हैं यहाँ पर, और फौज जो है ना वो चला रही है। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं प्रॉपर्टी के, और जिसका इमरान खान साहब बहुत दावे करते हैं जी बड़ी सीमेंट बिक रही है, बड़ी जनाब ये गाड़ियाँ बिक रही हैं, वो सारी फौज ख़रीद रही है और टैक्स कोई नहीं दे रही। तो जब टैक्स नहीं देगी, जब वो ख़रीदारी करेगी गाड़ियों की और ख़रीदारी करेगी सीमेंट की, रेत की और लोगों की, वो खरीदारी करती है। 600 रुपये देते थे मुलाजिम उसको, मजदूर को, तो आज भी 600 रुपये। तो जब ये सारी चीज़ उसने ऑक्युपाई की हुई है तो आप कैसे तवक्को कर सकते हैं? तो सादिक शाह साहब, ये जो आप में तलखी आई हुई है इतनी ज़्यादा, ये बुनियादी चीज़ है, इसमें तलखी नहीं है। के बारे में ये कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो फंडिंग होती थी हमारे यहाँ मसूद अजहर साहब को, कोई उसमें कोई कमी आ गई हो? मुझे सही साहब ये हकायक हैं, आप जाकर हकायक चेक करें। क्योंकि मुझे एक अहले हदीस ने बताया था कि हमें जो है वो अब हम बहुत मुश्किल में हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हमें गुज़श्ता ही दिनों कोई 85 लाख रुपए हमें मदरसा चलाने के लिए दिए गए थे। तो आप हकायक को चेक करें। वो आप तो ये कह रहे हैं कि वो जो जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं वो कल अदम तंजीम है और वो तो उनकी मुखालिफ हैं। फौज कभी भी उनको नहीं चांस देती, क्योंकि जाहिर है फिर उनको बजट देना पड़ेगा। उनको जो है ना अब किसी मौलवी तंजीम को या किसी इस्लामी तंजीम को पहले तो वो देते रहे हैं, पहले तो वो देते रहे हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स की हैसियत से उनसे बड़ा काम लेते रहे, तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त काम लेते रहे। वो अब भी आपको पता है तहरीक लब्बैक के जो मौलवी हज़ात हैं उन्होंने कहा जी हम 5 लाख मुजाहिद तैयब अर्दगान को देने के लिए तैयार हैं, बाजवा को देने के लिए तैयार नहीं है। तो आपने ये तकरीर सुने, यूट्यूब पर जाकर चेक करें। उन्होंने कहा जी 5 लाख मुजाहिद हम तैयब अर्दगान को देते हैं जो इसराइल में जाकर यहूदियों के ख़िलाफ़ जिहाद करें
اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری فوج اس قابل ہے کہ ہم اپنے مجاہدین کو ضائع کریں گے اپنی فوج کے لیے. تو یہ فوج کا کوئی مستقبل نہیں ہے. کوئی بھی مولوی یا کوئی بھی نہیں میں یہ دیکھیں سامراجی قوتیں تو یہ چاہتی ہیں کہ فوجی انسٹیٹیوشن کو بھی کیا جائے. بہت غلط نقطہ نظر. میں اس بار بات کر رہا ہوں کہ جو علماء ہیں وہ کبھی بھی اب استعمال نہیں ہوں گے جو ہسٹری میں ہوتا رہا ہے. میں جو اب تک استعمال ہوتے رہے ہیں, وہ جو اب تک استعمال ہوتے رہے ہیں, جو استعمال وہ ہوئے ہیں وہ تو امریکی کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا استعمال کیا علماء تو وہ اب وہ وقت ختم ہو گیا ہے, یعنی وہ اب استعمال نہیں ہوں گے. اسی لیے تو آپ نے دیکھا کہ افغانستان میں آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ مولوی استعمال ہوتے رہے ہیں, وہ جو داڑھی منڈے میرے جیسے وہ نہیں استعمال ہوتے. نہیں وہ سارے استعمال ہوتے رہے, لیکن مولوی کو تو نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن مولوی کو تو نہیں ہونا چاہیے تھا, مولوی کو تو نہیں ہونا چاہیے. مولوی سب سے پہلے جو استعمال ہوتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں سب سے زیادہ خلیفاؤں کے زمانے میں جو فتوے دے دے کے خلیفاؤں کو ریلیف دیتے رہے, کون دیتے رہے؟ یہ عالم ہی تو دیتے رہے. یہ بات تو صحیح, آپ نے تاریخ کا سچ بتایا ہے, تاریخ کا سچ بتایا. تو ناظرین کرام ہم اس حوالے سے یہ کہیں گے کہ فوج تو ہماری اپنی فوج ہے, ہم تو اس سے محبت کرتے ہیں, فوجی انسٹیٹیوشن سے محبت کرتے ہیں. لیکن جو فوج میں جو ایک اب لوگوں میں ایک نقطہ نظر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ امریکی جو چاہے ہیں, جو کہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اب امریکہ کو پاکستان کے آرمی کی ضرورت نہیں رہی, اس لیے وہ اسے اب کمزور کرنا چاہتے ہیں, وہ انڈین آرمی کے کنٹرول میں پاکستان کو دینا چاہتے ہیں. تو میں یہ بھی تو ایک نقطہ نظر سامنے رکھنا چاہیے نا, کہ یہ بھی تو نقطہ کہ وہ انڈیا کی فوج کے, کہ اگر اب پاکستان بھی انڈیا کی فوج کے کنٹرول میں چلا جائے, اگرچہ پاکستان کا نام رہے, تو پھر یہ پاکستان بھی جو ہے یہ شام بننے سے, لیبیا بننے سے, عراق بننے سے اس کو نہیں روکا جا سکتا. تو ہماری فوج کا جو ایک کردار ہے وہ تو سامنے اس پر سوچا جانا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ فوج کو بھی یہ چاہیے کہ یہ جو اب لوگوں میں تلخی پیدا ہو رہی ہے, کیونکہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں جو پولیٹیکل سیٹ اپ لایا جاتا ہے, کبھی نواز شریف کو لایا جاتا ہے, کبھی زرداری کو لایا جاتا ہے, کبھی پھر یہ عمران خان صاحب بھی اسی تسلسل کے ساتھ موجود ہیں جو کہ اپر کلاس کی حکومت کرتی ہے, اور اس کو یہ ہمارے ہاں جو ادارے ہیں وہی ان کو لاتے ہیں. میرا آخری موقف, آپ نے یہ دیکھا کہ جب عمران خان نے فوج کو پولیس کے ساتھ ملا کے پورے پاکستان میں گشت کرایا لاک ڈاؤن کے دوران, تو آپ نے دیکھا کہ ایک بھی اٹیک نہیں ہوا فوج کے اوپر. آپ نے یہ غور کیا کہ ابھی بھی عوام فوج کی عزت کر رہی ہے, ابھی بھی عوام جو ہے فوج کو چاہتی ہے, اس سے محبت کرتی ہے. ایک اٹیک بھی فوج پر نہیں ہوا, نہ ہی کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوئی ہے, بلکہ فوج کے آنے سے پولیس کی بھی عزت بڑھی ہے. عوام جو ہے زیادہ شادی یہ جو فوج کو ذریعے وہ یہاں پہ وہ کروایا, گشت کروایا پولیس کے ساتھ, تو یہ لوگوں پہ روب ڈالنے کے لیے, دہشت ڈالنے کے لیے. دیکھیں پولیس کی تو عزت ختم ہو گئی ہے, پولیس کا تو اگر عوام دہشت زدہ ہو جائے اور عدالتیں جو ہے حفاظت کریں گے. پولیس دیکھیں میرا موقف, ایک منٹ پلیز, آپ جو ہے نا غلط جو ہے نا تشریح نہ کریں. فوج کو انہوں نے اس لیے گشت کروایا تھا کہ ایس او پیز پر لوگ عمل نہیں کر رہے تھے. اس ایس او پیز پر عمل کرانے کے لیے انہوں نے کہا یہ پولیس تو ہماری ہے ہی نہیں کمی, یہ صرف غریبوں کو دھپا مارنے کے لیے اور چوروں کو. تو وہی تو بات میں بھی تو آپ میری بات کہہ رہا ہوں کہ لوگوں پہ لوگوں پہ طاقت, تو روب تو ہے نا ان کا. فوج کیا مطلب ہے, جب پولیس کا روب نہیں ہوگا تو پھر کسی اور کو بلانا پڑے گا. پولیس کا روب ضرور ہے, لیکن پولیس اور عدلیہ جو ہے نا وہ جھوٹے ہیں. وہ یہ عوام میں مشہور ہیں کہ پولیس اور عدلیہ جو ہے وہ جھوٹے مقدمے اور جھوٹی چیزیں کرتی ہے, لہٰذا اس کی وہ عزت نہیں ہے. وہ روب ہے, یہ نہیں کہ روب نہیں, فوج سچی ہے لیکن وہ عزت نہیں. فوج سچی ہے. فوج جو ہے وہ پہلی دفعہ آئی ہے پاکستانی تاریخ میں, پولیس کے ساتھ ساتھ ان کی گاڑیاں چلی ہیں, لیکن میرا یہ تو مردم شماری میں بھی لائی گئی تھی کہ ہماری وفاداری, یہ تو ہر چھوٹے بڑا کام جو ہے یہ مردم شماری, ہماری وفاداری الیکشن میں بھی آتے ہیں, اہم رول ہوتا ہے. یہ تو ہماری جو وفاداری ہے فوج کے بغیر تو کوئی بات نہیں. میری بات سنیں. اچھا ہم میرا خیال ہے اس ٹاپک کو چینج کرتے, زیادہ ٹاپک تو یہی رکھیں کہ یہ جو ہے میری بات سن لینا, یہ پارک جو ہے, اگر جو ہے لا انفورسمنٹ جو ہے ایجنسیاں اپنے کام میں جب ناکام ہو جاتی ہے تو لامحالہ ایک ایسی ایجنسی کو بلایا جاتا ہے جو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرانے کی اہلیت رکھتی ہے. فوج میں یہ اہلیت ہے, اس لیے اس کو بلاتے ہیں. تو یہ مارشاء اللہ بھی تو مارشاء اللہ کا جواب. میری بات ختم ہونے دے پلیز. بات یہ ہے کہ فوج کو کیوں بلاتے ہیں, وہ اس لیے بلاتے ہیں کہ
कि ये लोग नाअहल हुक्मरान हैं, इनमें अपनी अहलियत नहीं है कि हम फौज के बगैर अपने आप को जो है अपने कानून पर अमल दरामद करा सकेंगे, इनकी नाअहलियत तो वो ज़ियाउल हक 11 साल तक जो था वो फिर हुकूमत चलाता रहा फ़ौज के ज़रिए से। उसके बाद फिर उसने करप्शन के बारे में खुद हाथ खड़े करते हुए ये कहा था कि यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। जब उसने देखा, और उसके बारे में तो मियाँ तुफ़ैल जमात इस्लामी के जो अमीर थे, जो ज़ियाउल हक के पार्टनर थे पावर में, उन्होंने ये कहा था कि यहाँ तो जो है वो जमात इस्लामी के थे, जमात इस्लामी के अमीर थे। उन्होंने तो ये कहा था कि यहाँ तो ऐसे करप्शन हो रही है, ऐसे कंटोनमेंट्स में ऐसे कोठियाँ बन रही हैं जैसे कि खेतों में फसलें उगती हैं। तो ये उन्होंने कहा था कि ये करप्शन की एक वो है। खुद उसके पार्टनर ने, जो कि बिग पार्टनर था, लाइन पार्टनर ज़ियाउल हक का, हुकूमत में पार्टनर रहे थ्रू आउट। तो ये तो एक बात है। ये तो मुशर्रफ साहब ने भी तो 11 साल 10 साल जी 10 साल की, 10 साल लेकिन नाकाम हुए। तो हमारे यहाँ असल में पाकिस्तान को एक नए निज़ाम ये जो आप कोठियों की बात कर रहे हैं और ये जिस तरह से अभी ये सारा वो इमरान खान फोकस कर रहे हैं कि ये उनको किसी ने गलत मशवरा दे दिया है जिस पर वो बहुत पछताएंगे, क्योंकि ये जो किले बन रहे हैं ये जागीरदाराना निज़ाम का एक हिस्सा हैं और जागीरदार जो है वो दौलत लूट के वो गारा और सीमेंट और ईंट पर और इस पर खर्च कर रहा है, जिससे मुल्क के वसाइल ज़ाय हो रहे हैं। अब ये जो किले हैं ये उन जागीरदारों के लिए इस्तेमाल होंगे और बाद में जो है जो आम आवाम है वो तो बेचारी 1 मरले या 2 मरले का मकान भी अफोर्ड नहीं कर सकती, और जिसके पास कच्चे घर हैं तो वो कच्चे घरों में ही है, उससे कोई तब्दीली नहीं आ रही, चाहे सीमेंट इससे 100 गुना बिक जाए। तो ये जो सपोर्ट है जागीरदारों को, यही हुकूमत मुझे समझ नहीं आती कि किसने उनको ये मशवरा दिया है कि ज़्यादा सीमेंट बिकेगा तो हुकूमत को फ़ायदा होगा, ज़्यादा ईंटें बिकेंगी तो हुकूमत को फ़ायदा होगा, हुकूमत के ख़जाने में पैसे आएंगे। ये उन्होंने जो है वो गलत किसी ने मशवरा दिया है जिसके नताइज बहुत ही गलत आ रहे हैं कि जागीरदार मज़ीद जो है वो मजबूत हो रहे हैं और उनके किले तामीर हो रहे हैं और वो बाद में जो है आम आवाम का खून चूसेंगे। नहीं वो तो अब चूस ही है। मेरी बात सुने आप थोड़ी आप बंद करते हैं। आप ये कहते हैं ना जी फौज का जो टेन्योर है वो नाकाम रहा। कैसे नाकाम रहा जनाब? ज़ियाउल हक के ज़माने में PIA मुनाफे में थी, स्टील मिल मुनाफे में थी, रेलवे मुनाफे में थी, पब्लिक चैन और ये तो ज़ियाउल हक से पहले भी तो मुनाफे में ही थी। किसके ज़माने में? ये PIA ये वो किसके ज़माने में? मुनाफे में रही ना। किसके ज़माने में? ज़ियाउल हक भुट्टो के ज़माने में रही, उससे पहले रही। भुट्टो के ज़माने में तो वो बनी नहीं थी। PIA तो बनी। PIA के तो उसने भुट्टो साहब ने बेड़ा गर्क किया था। नहीं ये तो जमात इस्लामी का कंसेप्ट है। वो तो फौरन झट नहीं वो तो है, वो तो क्योंकि ज़ियाउल हक का मकसद चले ये जो मुल्क के जो मौजूदा सूरत हाल है जिससे पाकिस्तान दो चार है, ये ज़ियाउल हक की ही तो बदमाशियों और गलत पॉलिसियों का नतीजा है। आप पूरी बात करने नहीं देते, आप झट अपना जो है अपना मैं भी तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं तो जब मेरी बात खत्म हो तो आप करें। जब आपकी बात खत्म होती है मैं करता हूँ। बारिश होना चले बंद करें। बारिश आज की एक बड़ी गर्मा गर्म नशस्त हुई मंडली की। हम आए थे पार्क में वो करने के लिए कि ऑक्सीजन लें, लेकिन जालिम हुक्मरानों ने अवाम को पार्कों में ऑक्सीजन लेने से भी रोक दिया। इमरान खान की हुकूमत ने, बुज़दार की हुकूमत ने, जालिमों की हुकूमत ने और लुटेरों के तसलसल के साथ हुक्मरानी ने अवाम को अगर ये कोविड जो है शादरा पार्क में भी आने से रोक अगर ये कोविड कि हम ये ऑक्सीजन भी ना ले सकें, ये हमें चीनी नहीं दे सकते, ये हमें आटा नहीं दे सकते, ये हमें महंगाई के उससे वो करते हैं, लूटते हैं, लेकिन ये हमें कुदरत की दी हुई जो तोहफा है, कुदरत का दिया हुआ जो ऑक्सीजन है वो भी नहीं लेने देते जाते। जी मुफ्त तोहफा है कुदरत का, ये मुफ्त तोहफा वो भी रोक दिया इन जालिम हुक्मरानों ने कि इन जालिम हुक्मरानों ने, इन अफसरों के अपने लॉन्स बड़ी बड़ी कोठियों में ये रहते हैं। इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन में ज़रूरत है तो मूसा सईद को ज़रूरत है, सैयद लईक को ज़रूरत है, सैयद सादिक शाह को ज़रूरत है, मोहम्मद जमील को ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है, आवाम को ज़रूरत है, छोटे छोटे घरों में रहने वालों को ज़रूरत है, औरतों को ज़रूरत है, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को ज़रूरत है। इन्होंने पार्कों पर पाबंदी लगा कर के यहाँ पर लोग नहीं आ सकते तो ऑक्सीजन से रोक दिया है।
تو اس سے جو ہے مزید ہلاکتیں ہوں گی, کووڈ مزید پھیلے گا. آکسیجن تو بہت ضروری ہوتی ہے. انڈیا کو آکسیجن کے ٹینک دینے والے حکمرانوں اپنے ملک کے عوام پر آکسیجن کیوں بند کر رہے ہو؟ چلو ویکسین تو دے دو. اگر آکسیجن وہ جو اللہ نے قدرت نے دی ہے وہ نہیں دیتے تو ویکسین تو دے دو. نہیں, وہ ویکسین کہاں سے دیں گے؟ یہ تو آکسیجن بند کر رہے ہیں. یہ ان حکمرانوں کی عقل کو دیکھیے. اصل میں یہ اشرافیہ ہے نا, اوپر کے طبقے کی ہے. ان کے اپنے گھر جو ہیں یہ بڑے بڑے لانز ہیں. اب بنی گلا میں اس کو کیا آکسیجن پارک کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ اس کا تو سینکڑوں ایکڑ پر مشتمل اس کا اپنا پرائم منسٹر ہاؤس ہے, جس میں بہت بڑا گراؤنڈ ہے. اس کو کیا ضرورت ہے؟ یہ عثمان بزدار کو ضرورت ہے, افسروں کو ضرورت ہے. سب لوگ, افسر کمشنر بہاولپور جو ہے یہ کئی ایکڑ کی کوٹھی میں رہتا ہے. ڈپٹی کمشنر اسی طرح ایک بہت بڑی کوٹھی میں رہتا ہے جس کا بہت بڑا لان ہے. تو ان افسروں کو تو ضرورت نہیں ہے. ضرورت تو یہ میری غریب آبادی کی ہے, ورکنگ کلاس کی, جو 15-25 فٹ کے مکانوں میں رہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے مکانوں, ورکنگ کلاس, جن کو خوراک صحیح نہیں ملتی اور جن کے لیے اب عمران حکومت نے یہ آکسیجن کا یہ پابندی لگا کر کہ یہ پارک جو ہیں اس میں نہ آئے, محروم کر دیا ہے عوام کو. تو ناظرین کرام اجازت چاہیں گے.